Hello everyone, welcome to Manowar Education. So this session is basically about the B.Ed entrance examinations. So in this session we are going to discuss about the general knowledge expected question, most important and expected questions जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So this is the set 1 of general knowledge और ये जो सेट हमने बनाया है वो पिछले साल के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उनके पैटर्न को देखते हुए और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज इंक्लूडेड इन दिस सेशन. So if you want your systematic preparation for the B.Ed examination, you can enroll in our coaching institute, that is Manowar Education. So these are the offline center. If you are residing in Mumbai, you can visit here in Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri and Pune coming soon. So if you are residing outside the Maharashtra, outside the Mumbai, you can contact these online courses on this number. So इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं. और आप अभी नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जो है आप डायरेक्ट जो है साइट पे जा सकते हैं. सो यू कैन फाइंड द लिंक देयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और ये भी जो है हमारे सोशल मीडिया साइट है, यहाँ पर रेगुलर अपडेट जो है हम लोग करते रहते हैं. सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल्स ऑन वेरियस इंस्टा, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, सब पे जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर जो है आपको इन्वॉल्व करने में जो है बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी. यू कैन वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक्स, मेंटरशिप एंड स्ट्रेटजी एंड वेरियस मेनी अदर थिंग्स you will be provided here. So if you want your systematic preparation, you can enroll here. So if you are a serious candidate, so आप लोग जो है ये कोर्स ले सकते हैं. So आइए स्टार्ट करते हैं. Let's see the first question. And the first question is, which among the following was the first site of the Indus civilization to be excavated early in the 20th century? So इंडस सिविलाइजेशन में कौन ऐसा साइट था जो सबसे पहले जो है एक्सकावेट किया गया, सबसे पहले जो है उसको खोजा गया, डिस्कवर किया गया. सो इसमें जो है मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी, एक्स्ट्रा जो है आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो आपको जो है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे. सो विच वाज द फर्स्ट साइट? दैट इज चुरहाद्रो, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा. एंड द आंसर इज हड़प्पा. सो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सहनी इन 1921 एंड द सेकेंड साइट वाज मोहनजोदारो विच वाज discovered by Rakhaldas Banerjee in 1922. So these are the two most important sites which was discovered first. हड़प्पा was on the bank of the river, रावी रिवर के बैंक पर है, यह भी पाकिस्तान का पार्ट है और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान का पार्ट है. Now move on to next question. Who among the following was the last Lodi Sultan of Delhi who was defeated in the first battle of Panipat in 1526? So the 1526 में जो है पहला बैटल जो हुआ था बाबर और जो है किन के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर से वो हार गए थे. Who was the last Lodi Sultan? And Ibrahim Lodi, Behlol Lodi, Alauddin Hussain Lodi, Sikandar Lodi, and the correct answer is Ibrahim Lodi. So in the first battle of Panipat in 1526, Ibrahim Lodi was defeated by Babur, and after that battle Babur established the Mughal Empire in India. After that in 1527 he fought the battle of Khanwa with Rana Sanga. Now move on to next question. Who among the following was the founder of the Indian National Congress? So Indian National Congress के founder कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, एलन ऑक्टेवियन होम, रमेश चंद्र बनर्जी. And the correct answer is Alan Octavian Home. So Indian National Congress was founded by Alan Octavian Home in 1885 and he was a retired civil servant, and the first chairman of this Indian National Congress was W.C. Banerjee, Bhumesh Chandra Banerjee, and that was held in बॉम्बे. तो पहला जो है सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, और W.C. बनर्जी जो है इसके चेयरमैन थे. Now move on to next question. The partition of Bengal was announced by which viceroy of India on 19 July 1905? So partition of India जो है किसने अनाउंस किया था? वाइसराय उस वक्त कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एरविन, लॉर्ड बेलिंगटन, लॉर्ड हार्डिंगे. And the correct answer is Lord Curzon. So the partition of Bengal was announced by Lord Curzon on 1905 and this partition was implemented on 16th October 1905. Against this partition Swadeshi movement was started on 7th August 1905. तो ये जो है इसीलिए अभी celebrate Swadeshi दिवस on this very date. Now move on to next question. What is the composition of the electoral college for the election of vice president of India? So this is the polity session basically. तो electoral college जो है vice president के election में कौन कौन वोट करते हैं? Members of both the houses of the parliament, elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies, elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha, member of Rajya Sabha only. And the correct answer is members of both the houses of the parliament. So members of दोनों member जो होते हैं, दोनों house के जो member होते हैं, both elected and nominated
votes in the vice presidential election. And vice president is the ex officio chairman of the राज्य सभा. ex officio chairman होते हैं ये राज्य सभा का. president के election में जो vote करते हैं that is elected member of लोक सभा, राज्य सभा and is a state legislative assembly and the members of Delhi and Puducherry. Now move on to next question. Which state enjoys the distinction of being the first linguistic state of India? तो सबसे पहला linguistic state कौन बना था? The first जो है language के basis पे state किसको बनाया गया था? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु. And the correct answer is Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh is the first created linguistic state of India for Telugu speaking people. और ये कब बना था? In 1953 में जो है ये बना था. श्री रामालू जो है वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे मद्रास से अलग होने के लिए, तमिल से अलग होने के लिए. उसके बाद ही आंध्र प्रदेश को है जो है 1953 में एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था. Now move on to next question. What is the minimum age in years for becoming the MP at लोक सभा एंड राज्य सभा? तो लोकसभा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है एमपी बनने के लिए, कितना एज चाहिए, और राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? दैट इज 23 and 30 years, 25 and 30 years, 25 and 35 years, 29 and 35 years. And the correct answer is 25 and 30 years. So to become the MP of Lok Sabha, you need 25 years of age and 30 years for the Rajya Sabha. और local body के लिए आपको election लड़ने के लिए 21 years चाहिए age. Now move on to next question. The depletion in the ozone layer is caused by. So this is science question. ओजोन लेयर का जो है डिप्लीशन किससे हो रहा है? ओजोन लेयर में जो है होल किससे हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. एंड द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो द मेजर कॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. और वो कहाँ से रिलीज होता है? आपके रेफ्रिजरेटर से, आपकी एसी से. एंड व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे विच कुड कॉज कैंसर. वो कैंसर वगैरह, आपको स्किन कैंसर, आई डिजीज जो है वो क्रिएट कर सकता है, उससे हमें बचाता है. Now move on to next question. Which one of the following is the wettest place in India? So सबसे ज़्यादा wettest place कहाँ है? इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? That is चेरापूंजी, मोन्सीराम, महाबलेश्वरम, उदगमंडलम. And the correct answer is मोन्सीराम. So मोन्सीराम is a village in the East Khasi Hills district of मेघालय, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है. And this is the wettest place of the world. ये दुनिया का भी सबसे wettest place है, सबसे ज़्यादा बारिश दुनिया में भी यहीं होती है. Now move on to next question. Which one of the following is the first national park of India? तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन है? कन्हा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क. एंड द करेक्ट आंसर इज कॉर्बेट नेशनल पार्क. सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 एज अ हेली नेशनल पार्क. और उसके बाद जो है बाद में इसका नेम चेंज कर दिया गया था, रीनेम्ड एज कॉर्बेट नेशनल पार्क. इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात की जाए तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इज हेमिस नेशनल पार्क विच इज़ इन लद्दाख. ये कहाँ है? लद्दाख में है, जो कि सबसे लार्जेस्ट है. Now move on to next question. Which tax is levied on the annual income of individuals and entities in India? तो कौन सा टैक्स जो है एनुअल इनकम पे आपको देना पड़ता है? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स. एंड द करेक्ट आंसर इज इनकम टैक्स. So income tax is paid by individuals or entities depending on the level of earning or gains during a financial year. तो ये जो है that is a direct tax, आपको जो है direct tax पेड करना पड़ता है, that is income tax. Indirect tax जो है GST वगैरह, that is a indirect tax. Now move on to next question. The Reserve Bank of India was established on. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये जो है 1 अप्रैल 1935, 12 जुलाई 1982, May 26, 2006, September 30, 2005, and the correct answer is 1 April 1935. So the Reserve Bank of India, which was established by 1934 Act on 1 April 1935 को establish हुआ था 1934 RBI Act के through, and it was the first, and this bank was nationalized in 1949, and the first governor of this RBI was Osborne Smith, and the first Indian governor was C.D. Deshmukh. And the current governor अभी कौन है? current governor है that is शक्तिकांत दास. Now move on to next question. Which year saw the establishment of NABARD? तो NABARD का establishment कब हुआ था? 1975, 1982, 1985, and the correct answer is now 1982. So NABARD was established on July 12, 1982 with the goal of promoting sustainable and equitable agriculture and rural development in the country. और NABARD जो है आपको agriculture field में लोन प्रोवाइड करता है. Now move on to next question. X-ray were discovered by. तो X-ray किसने डिस्कवर किया था? Van Leeuwen, Becquerel, Marie Curie, Roentgen. And the correct answer is Roentgen. So X radiation composed of X-rays is a form of electromagnetic radiation. In many language, X-ray radiation is called Roentgen radiation. और ये जो है उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर कहा जाता है X-ray जो है Roentgen ने डिस्कवर किया था. ये साइंस का क्वेश्चन है.
नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनीमोमीटर मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनीमोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ विंड, एंड द करेक्ट आंसर इज स्पीड ऑफ विंड। सो एनीमोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड। सो ये जो है विंड स्पीड जो है मेजर करता है। एनीमोमीटर वाज गिवन बाय लियोन बटिस्टा अल्बर्टी इन 1450 जो है इन्होंने ये चीज़ बनाया था। एनीमोमीटर जो है वो एक मेजरिंग डिवाइस है जो कि स्पीड ऑफ विंड को वो मेजर करता है। Now move on to next question, who discovered the neutron? So which person discovered the neutron? Neutron की discovery किसने की? Niels Bohr, James Chadwick, Ernst Rutherford, J.J. Thomson, and the correct answer is James Chadwick. So James Chadwick discovered the neutron in 1932. आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन was discovered by J.J. Thomson and this proton was discovered by Goldstein. और these are the subatomic particles. Neutrons are neutral in charge and electrons are negatively charged and protons are positively charged. And protons and neutron both form the nucleus of an atom. ये दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाता है। Now move on to next question, which metal is added to copper to create bronze? तो ब्रॉन्ज एलॉय बनाने के लिए कौन से मेटल कॉपर में ऐड करते हैं? जिंक, निकेल, टीन, एल्यूमिनियम, एंड द करेक्ट आंसर इज टीन। So bronze in alloy of copper and tin known for its historical significance in tools and weaponry। और जो ब्रॉन्ज में अगर कॉपर में अगर टिन को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज। अगर यही कॉपर में हम लोग जिंक को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट इज ब्रास। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जेड जो है जिसमें नहीं होगा उससे जिंक बनेगा। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ जीन्स इज नोन एज। तो इनके स्टडी को क्या कहते हैं? बॉटनी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, वायरोलॉजी, एंड द करेक्ट आंसर इज जेनेटिक्स। So genetics is the branch of biology that involves the study of genes, their structure, function, and how traits are inherited and passed on from one generation to next। आपका जो कैरेक्टर है, फिजिकल कैरेक्टर जो है, आपके जो जीन्स है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जनरेशन से दूसरे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो जो है हम इसमें पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। Now move on to next question, which scientist is credited with the theory of evolution by natural selection? So natural selection का theory किसने दिया था? Which scientist has given this theory? Charles Darwin, Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace, John Baptist Lamarck, and the correct answer is Charles Darwin. So Charles Darwin along with Alfred Russel Wallace independently developed the theory of evolution by natural selection in the 19th century। और जो है Origin of Species जो है बुक इन्होंने लिखा था जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने बताया था कि कैसे जो है अडॉप्ट करेंगे तभी नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। Now move on to next question, what is the basic structural and functional unit of all living organism? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एंड द करेक्ट आंसर इज सेल। So cells are the fundamental unit of life. They vary in structure and function but share the common characteristic of being the building blocks of living organism. And these cells are discovered by जो है रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक। सेल्स में न्यूक्लियस होता है and this nucleus was discovered by Robert Brown। Now move on to next question, NATO is a military alliance primarily for the defense of। तो NATO जो है वो किसके लिए जो है वो बनाया गया था? एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एंड द करेक्ट आंसर इज यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सो NATO is a military alliance North Atlantic Treaty Organization and 31 countries from Europe and North America formed in 1949। Now Sweden is also the part of the NATO, that is 32 कंट्री अब हो चुका है। सो NATO जो है आपको ये सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जो है ये बनाया गया था उसको काउंटर करने के लिए। Now move on to next question, the G7 group of 7 consists of industrialized nations, which country is not member? So G7 के इसमें से मेंबर कौन नहीं है? जापान, कनाडा, चाइना, जर्मनी, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। सो G7 कंसिस्ट ऑफ 7 ग्रुप। पहले रशिया भी इसका पार्ट था, दैट्स वाई इट इज नोन एज G8, बट इन 2014 Russia was removed from the group। Now there are 7 groups and these are the developed country group, that is Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and the United States of America। This consists of G7 group। Now move on to next question, the Hague is home to which international organization focused on legal dispute resolution? तो हेग जो है वो किसका किसका हेडक्वार्टर है? हेग में किस ऑर्गेनाइजेशन का? ICJ, ICC, ITLOS, WTO, and the correct answer is ICJ। So the International Court of Justice is the principal judicial organ of the United Nations and it was established in 1945 and its headquarters is in हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है सेटल जो है वो क्या करता है? दो नेशन के डिस्प्यूट को सेटल करता है जो है इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। जितने भी यूएन के ऑर्गन है, अदर 5 ऑर्गन्स, उनका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन न्यूयॉर्क। दिस इज द ओनली ऑर्गन विच इज आउटसाइड द न्यूयॉर्क, जो कि हेग नीदरलैंड में है।
नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द नोबेल प्राइज। सो नोबेल प्राइज किसने एस्टैब्लिश किया था? अल्फ्रेड नोबेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन। एंड द करेक्ट आंसर इज Alfred Nobel. So Alfred Nobel was an inventor, entrepreneur, scientist and businessman who also wrote poetry and drama, and he discovered dynamite. डायनामाइट इन्होंने डिस्कवर किया था और इन्होंने ही अपने नाम पर जो है ये अवार्ड जो है अनाउंस किया, दैट इज इन 1895 जो है दीज अवार्ड्स जो है 6 फील्ड में दिया जाता है अभी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, लिटरेचर और पीस एंड इकोनॉमिक्स, दीज 6 फील्ड में जो है ये अवार्ड आपको दिया जाता है। Now move on to next question, who was awarded the Nobel Peace Prize for 2023? So this is the current affair question. Nobel Peace Prize जो है इस बार 2023 का किनको दिया गया है? AI Go, Betty Williams, Henry Kissinger, Nargis Mohammadi, and the correct answer is Nargis Mohammadi. So Iranian activist Nargis Mohammadi was awarded the Nobel Peace Prize for 2023 for her relentless fight against the oppression of women in Iran. So she has been awarded with the Nobel Peace Prize of 2023. Now move on to next question, who was the first Indian to win Raymond Magsaysay Award? तो पहले इंडियन कौन बन गए हैं जिन्होंने Raymond Magsaysay अवार्ड जो है वो जीते थे? सत्यजीत रे, विनोबा भावे, MS सुब्बुलक्ष्मी, अरुण शोरी। एंड द करेक्ट आंसर इज विनोबा भावे। सो द फर्स्ट इंडियन टू विन द Raymond Magsaysay Award was Vinoba Bhave in the year 1958 under the category of community leadership. And Vinoba Bhave was the follower of Gandhi ji. He was the first सत्याग्रही during the individual सत्याग्रह in 1940. तो 1940 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था उसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे ही थे, एंड द सेकंड सत्याग्रही was जवाहरलाल नेहरू, एंड ही स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट, दैट इज लैंड ग्रांट मूवमेंट after the independence. Now move on to next question, which Indian language is written in Devanagari script? तो देवनागरी स्क्रिप्ट में कौन सा इंडियन लैंग्वेज लिखा जाता है? तमिल, कन्नड़, हिंदी, बंगाली, एंड द करेक्ट आंसर इज हिंदी. So Hindi is written in the Devanagari script, which is also used for several other languages like Sanskrit and Marathi. So Devanagari script जो है हिंदी के लिए यूज होता है. Now move on to next question. Sangam literature dating back to ancient times is associated with which classical languages? So Sangam literature जो है वो किसके लिए था? संगम जो है लैंग्वेज, संगम जो एज था दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज? तेलुगु, संस्कृत, तमिल, मराठी, एंड द करेक्ट आंसर इज तमिल. सो संगम लिटरेचर कवरिंग डाइवर्स सब्जेक्ट इन रिटन इन तमिल. Now move on to next question. Which temple in Odisha is known for its annual Rath Yatra, during which the deities are taken on a chariot procession? Lingaraj temple, Jagannath temple, Konark Sun temple, Mukteshwar temple. And the correct answer is Jagannath temple. So Jagannath temple in Puri is famous for its Rath Yatra, where the deities Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra are taken on grand chariot procession. तो ये जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में है जहाँ पे ये रथ यात्रा जो है निकाला जाता है. आपको लिंगराज टेम्पल भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है और कोणार्क सन टेम्पल ये भी उड़ीसा में है. एंड दिस कोणार्क टेम्पल इज अ सन टेम्पल एंड इट इज नोन एज ब्लैक पगोड़ा. इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं. Now move on to next question, and this is the last question of this set, that is 30 क्वेश्चन सेट है आपको जनरल नॉलेज में, और ये लास्ट क्वेश्चन है. इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस आर स्पेशल फीचर्स? तो इसमें से बोट रेसेस जो है किस फेस्टिवल का सबसे स्पेशल फीचर है? पोंगल, नवरात्रि, रोंगाली बिहू, ओनम. एंड द करेक्ट आंसर इज ओनम. सो बोट रेसेस आर अ स्पेशल फीचर इन द फेस्टिवल ऑफ ओनम. ओनम फेस्टिवल जो है एक ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कि केरल में सेलिब्रेट किया जाता है. सो दीज आर द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं. सो ये जो है हमने डिस्कस किया इस सेशन में. तो ये जो है आप लोगों को, आप अगर फिर से आप सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. अगर ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल करके कंटेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू इनरोल थ्रू द ऑफलाइन कोर्सेज देन यू कैन विजिट अवर सेंटर बोरीवली, बसई, दादर, थाने. और आप लोग जो है लिंक ज़रूर चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से जो है आपको सब कुछ जो है आपको पता चल जाएगा. वहाँ से आप जाकर साइट को देख सकते हैं. यू कैन विजिट अवर साइट हियर, दैट इज manuward.edu.com. और यहाँ पर जाकर आप बाई ऑनलाइन में जो है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर फुल कोर्स का पैकेज आएगा. सो पैकेजेस एंड यू कैन बाई these packages like MHB CET 2024 program in which you will be providing video lecture, mock test plus handouts. डेमो पैकेज भी आप ले सकते हैं, या फिर जो है आपको 2025 का जो है पैकेज आप ले सकते हैं. दैट वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट प्लस हैंडआउट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसमें. तो ये जो है पैकेज आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप अगर स्टडी मटेरियल जो है ले सकते हैं यहाँ से, तो बीएड का जो है स्टडी मटेरियल आप बाई कर सकते हैं यहाँ पर से. MH BEd अदर्स जो है यहाँ पर जाकर आप डिटेल देख सकते हैं.
और फिर जो है नहीं तो आप जो है सेक्शनल कोर्स भी ले सकते हैं। सेक्शनल कोर्स इज हियर दैट लाइक बीएड जो है जीके करंट अफेयर का जो है सेक्शनल कोर्स है। आपको और भी सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, दैट इज लाइक इंग्लिश, रीजनिंग, तो सभी का जो है यहाँ पर आपको सेक्शनल जो है आपको कोर्स भी मिल जाएगा। फिर आप अगर मॉक टेस्ट कर देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप मॉक टेस्ट का जो है से देना चाह रहे हैं तो मॉक टेस्ट जो है आप यहाँ से जो है मॉक टेस्ट का पैकेज जो है बाई कर सकते हैं। तो दीज आर द मॉक टेस्ट पैकेज, तो इसको जो है आप आराम से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है आप हमारे साइट पर आकर जो है manova.edu पे आप जाएंगे बाई ऑनलाइन पे, तो यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाकर जो है आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे फुल कोर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल कोर्स, बुक स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ऑन अ रिजनेबल रेट, और आपको जो है बहुत अच्छे से यहाँ जो है से फुल जो है आपको तैयारी भी हो सकती है। फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत बेटर है। अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड, आप इसको पूरा तरह से जो है ले सकते हैं। So with that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next session. Till then, goodbye.